الحمد للہ الذی ہدانا للایمان وہدانا بالقرآن وأجابت دعوتنا بالفضل والإحسان وصلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم چیئرمین صاحب، محترم مولانا امین صاحب، دیگر بزرگان محترم و نوجوانان ملت، یہ جو چند دنوں سے شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا انتظام چل رہا تھا، یہ باہر کے لوگوں کے سامنے بھی اس کا نقشہ سامنے آیا اور یہاں کے لوگوں کے سامنے بھی نقشہ آیا، صورتحال پیش آئی، اور جو اس اوقاف میں کام کرتے ہیں ان کے سامنے بھی صورتحال سامنے آ گئی. زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہوں گا، جو اس وقت کا انتظام تھا، جس طریقے سے آج یہ عرس منایا گیا، ماضی میں کہیں آپ کو اس کی مثال نہیں ملی. وہ ماضی میں بھی یہاں کے اوقاف کے چیئرمین بڑے بڑے عہدوں کے رہتے تھے، ان کی اپنی لابیاں ہوتی تھی، ان کا اپنا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا تھا، مگر جو کام دین کا ہونا چاہیے تھا یا عوام کا کام ہونا چاہیے تھا، اس کو اگر ہم کسی معیار پر پرکھنا چاہیں تو سب 50% پیچھے نیچے ان کا کام ہوتا تھا. حالانکہ جو چیئرمین ایسی پارٹی کا ہوگا جو رولنگ پارٹی ہوگی، اس کے لیے وسائل کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن آج تک کے جو چیئرمین آئے، انہیں صرف اپنے مفادات اور اپنے پارٹیوں کے مفادات کو ملحوظ رکھا اور عرس کے نام پر ایک لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا. یہ پہلی دفعہ موقع ہے، دوراندیش آدمی، دانشور آدمی دیکھ لیں، یہ بھی وہی اوقاف کا سلسلہ ہے. آج ایسا کام کیوں ہوا؟ پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ لوگ پریشان ہوتے تھے، پہلے اتنے پریشان ہوتے تھے کہ کہتے تھے کہ شباب میں کوئی انتظام نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. پانی تک ان کو میسر نہیں ہوتا تھا وقت پر. زیارتوں سے چلاتے تھے، ہو پانی نہیں ہے، محبت بھی پانی کو کہو پانی لائے وغیرہ. اور اس سے پہلے کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ آپ کو پتا نہیں تھا عرس ہے وغیرہ؟ اس سے پہلے آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ آج کیوں نہیں کسی نے چیخا؟ نہ پانی کے متعلق چیخا، نہ بجلی کے متعلق چیخا، نہ کچھ اور سروس کے متعلق، کھانے پینے کے بھی متعلق چیخا. ورنہ ہزاروں کو کھانا کھلانا اور سروس پوری انجام دینا، یہ بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. عام لوگ اس کو سرسری کہیں گے وغیرہ. یہ چھوٹا سا کوئی اجتماع کرتا ہے، گھر میں شادی کرتا ہے وغیرہ، چند 100 آدمی ہوتے ہیں، زیادہ سے ہزاروں میں تعداد ہوتی ہے. اور یہاں جب 4-4 5-5 ہزار 10,000 کے تعداد ہوتی ہے لوگوں کے، ان کو کھانے کھلانا اور ان کی سروس ہر طرح سے پوری کرنا وغیرہ، یہ ایک بڑا کام ہے. اور یہ ہمارے چیئرمین نے دکھلایا کر کے کہ اگر کام کرنے والے افراد ہوں، آپ حضرات تھے جنہوں نے اس کام کو 4 چاند لگائے.
और मैंने कहा जो बाहर के लोग थे उन्होंने भी मेरे सामने एक अक्सरा पेश किया कि जैसा आज इंतजाम था ऐसा पहले कभी इंतजाम नहीं हुआ। इस काम के लिए जो इस वक्त अवकाश का सिलसिला चल रहा है, इसका सब चेहरा जो जा रहा है दर्शन जा रहा है। जब से वो अवकाश में आई है तब से जम्मू कश्मीर के अवकाश की सूरत हाल बदल के रख दी। हर जियारत पर वो जाती है, उसको पूंछ देखो, राजौरी देखो, जम्मू देखो, श्रीनगर के हर जगह में देखो, इस दूर दराज इलाके में यहाँ भी आ जाती है। इस दफा आ न सकी मगर वो आती रहती है और उन्हीं की काउशू से ये जो है इस सिलसिला चल रहा है, आगे चल रहा है वगैरह। और ये कौम का जो सरमाया था उसको लुटेरों ने बेदर्दी से लूटा था और गलत जगहों पर इस्तेमाल होता था। ये पहली दफा मिसाल कायम हो रही है पिछवाड़ में कि सही तरीके से जो सरमाया मुसलमानों का था या औकाफ का अब सही तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। वरना सिर्फ पार्टियों के इस्तेमाल होता था, सियासी पार्टियों के लिए इस्तेमाल होता था और सियासी वर्गों को रिश्वत दे दिया जाता था, उन्हीं को तनख्वाहें दी जाती जो सियासी वर्कर होते थे। इन गरीबों को कोई नहीं पूछता था। वो लीडर का जो खास आदमी होते थे वही मुलाजिम उसमें होते थे, वो काम पर लग जाते थे। आज इस वक्त आप देखते होंगे अक्सर गरहानी के नौजवान जो है वो गरीब खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। ये इस वक्त की देन है, ये हमारे चेयरमैन की देन है, ये दर्शांद्रा भी की देन है। ऊपर हम उनको कैसे उनको ये इनका शुक्रिया नहीं करेंगे, उन लीडरों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्हें पूरी कश्मीर ये मुसलमान कौम को लूटा, उनको जलील कर दिया वगैरह, हर दीन के एतबार से भी और इक़्तिसादी तौर से भी हमारे नौजवान जो है पस्त हो गए वगैरह। और जब भी कोई होता था फितना हो जाता था, यहाँ के नौजवानों को बस केसों में फंसा देते थे चलो वगैरह, कोई उनका परेशान हाल नहीं होता था। उसकी मुसलमान लीडर की लीडरी चलनी चाहिए, उसकी अपनी पार्टी चलनी चाहिए, बस उसी के पीछे सब उसका दौर होता था। वो अपना सरमाया भी लगाता था, ये कौम का जो अवकाश था सरमाया वो भी उसी में लगा देता। हम उन पर लानत भेजते हैं यहाँ पर वगैरह और मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि आप बेदार रहो। अगर आपके दीन के साथ कोई खिलवाड़ करता है आप जबान क्यों नहीं खोलते? अगर आपके सरमाए मुसलमानों के सरमाए को इस तरह बेदर्दी से खरीद किया जाता था, लूटा जाता था, आपकी जबानें क्यों बंद थी? क्या आपके दिल में ईमान नहीं था? गैर मुस्लिम को गैरत आती है तो क्या मुसलमान को गैरत नहीं आती है? ये एक मिसाल हमने पूरी रियासत में पेश की यहाँ किश्तवाड़ से। अगर इसकी सही अक्कासी होगी पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज जाएगी वगैरह कि यह सही हुआ या नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि आइंदा इससे भी ज्यादा तरक्की हो और हमारे नौजवान जो है वगैरह इससे अपने रोजगार हासिल करें वगैरह और इस अवकाश में ऐसी सूरत बन जाए जो अवकाश का सरमाया है वगैरह इसको इस तरह से यूटिलाइज करें कि जो हमारे नौजवान इस वक्त बेकार हैं, सरकारी नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, कहीं मजदूरी के लिए तड़प रहे हैं वगैरह, उनके लिए जब सूरतें बन जाएंगी वगैरह वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, इक्तिसादी हालत उनकी ठीक हो जाएगी। नहीं इस वक्त मुसलमान कौम में देख लीजिए भिखारी सबसे ज्यादा मुसलमानों में, सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें भी भीख मांगती हैं और मुसलमान कौम में ज्यादा। ये इसलिए हुआ कि जो सरमाया मुसलमानों का था या औकाफ का सरमाया जो उनको इस्तेमाल नहीं किया, उस बेवा को नहीं मिला उसका हक, यतीम को उसका हक नहीं मिला, गरीब को उसका हक नहीं मिला, तो भिखारी नहीं भीख नहीं मांगे और क्या करेगा? कहां से आपकी जरूरियात पूरा करेगा? रोएगा किस कौम के साए रोएगा? वो रोएगा तो किस लीडर के सामने? लीडर को तरस ही नहीं आता है। लीडर को अपनी ऐश होना चाहिए, उसको क्या पता गरीब के खाता है नहीं खाता है, यतीम का क्या है, बेवा खाती है या नहीं खाती है, उसके तन पर कपड़ा है या नहीं है। ये तो कोई लीडर ऐसा होना चाहिए जो दर्द दिल रखने वाला होता, उसको दर्द होता किसी यतीम का भी, बेवा का भी वगैरह, या औकाफ इसीलिए कि था। लेकिन ये सिर्फ रोने के बाद में इसकी जो सूरत हाल थी वो
उम्मत मुस्लिमा को रोने पर मजबूर करते हो बिजली वगैरह। आप कुछ उम्मीद बन गई है कि इसमें इस्लाह हो जाएगी और उन यतीमों, गरीबों, बेवाओं का कोई सहारा बनेगा वगैरह। मेरी दुआ है कि औकाफ तरक्की करे वगैरह और इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके इसको गरीब पर साफ किया जाए वगैरह, ताकि उनको सहारा बन जाए। इसके साथ ही वे जो जिम्मेदार हैं और जो वर्कर हैं वगैरह यहाँ पे, उन्होंने जिस जाफिशानी से काम किया उसको मैं औकाफ की तरफ से पूरे शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि ये छोटी तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजिम, हम इनको छोटी तनख्वाह देते हैं, मगर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको भरपूर जज़ा अता फरमाए, उनके खानदान को आबाद कर, उनके बच्चों को सेहत और सलामत रखे, उनके घरों को सही सलामत रखे वगैरह। इसी तरह जो अहदेदार हैं, अहदेदारान हैं, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की और अपने फजल से नवाजे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।